Hi dear students, in this class we are discussing about the inverse trigonometric function. So actually we have to know first trigonometric function in first year, and this is class 12 of our CBSE or whatever NCERT. So this is the inverse state board or CBSE आपका inverse trigonometric function class 12 second chapter. So we can discuss deeply of all the concept in this chapter. Especially we have to discuss about the graphs. So we have to discuss about graph in this chapter. So that will I will discuss in the next video. Means I will separately one video I will make on the inverse trigonometric graphs. So पहले graph कैसे है? So what are the trigonometric graphs and how to find the inverse trigonometric graphs? That will we have to restrict some domains. Why we have to restrict that domains? We'll discuss about separate video on that. So we'll discuss, and in this class this is the part 1. There are 4 parts. Measure means only you have to make complete in 4 parts, and each class contains 30 to 40 minutes. In that only you have to discuss all the problems, all the properties of inverse trigonometry. In this chapter specially they will ask 2 marks 2 question, 3 marks 1 question, and 2 marks 1 question, 3 marks 2 questions. Like that they will ask 2 marks plus 3 marks 2 question, or 2 marks 2 question plus 3 marks 1 question, and MCQ 1 will be there, and fill in the blanks will be 1 MCQ. Clear? So we'll discuss one by one and discuss some previous year questions also. The first thing is we need to know about the domain and range. What is domain? Domain means what you can substitute in the given function and what will it gives output. That is nothing but what? Range. We'll discuss everything in the graphical method. Means what is the graph of sine function and what is the graph of sine inverse function. Is sine x function is a 1 1 and on 2, we have to check it for to find the inverse. For to show that invertible, you have to show in 1 1 also on 2 also. But a normal sin x function is not a 1 1, not on 2, but still also it has a inverse. I say we are restricted their domain real to minus pi by 2 pi by 2. That will be reversed to the inverse function. Clear? Here we will directly move with the direct examples and direct parts. You can see one by one, and you can check that video will be there in the description box, and it will be available. And now I will start with the sine inverse x. What is sine inverse x? It is the reverse of sine x, and it is the inverse of sine x. The sine inverse domain is the inverse of sine inverse x is the domain minus 1 to 1, and it is also same for cos inverse x minus 1 to 1. And what is the output for this one? This is the output minus pi by 2 to plus pi by 2 with closed interval. With the closed interval 0 to 5. These are the two same, these are the same. Clear? So now we have to take about the cosec inverse x as well as sec inverse x. Cosec inverse x means what? The r minus 1 to 1 means in this interval you are removing that point. We'll discuss. And what about the range? The minus pi by 2 to plus pi by 2 with closed interval with the 0. Clear? And what about the sec inverse? That is also same, r minus 1 to 1 open interval, and here also 0 to 5 closed interval, and minus kya find karna idhar? Minus 5 by 2. Clear? And what about the tan inverse x? Here the real number, here also real number. And what is the output for this one? Simple, minus pi by 2 to pi by 2 open interval, 0 to 5 open interval. These are called what? Open intervals, and these are open, these are closed. This is about the domain and range of the given what is that? Inverse trigonometric function. And here sometimes range को भी आप principal value of branches भी बोल सकते. Clear? Output, it is nothing but the output, and this is nothing but the input. Clear? आप क्या क्या substitute कर सकते, करने के बाद क्या क्या मिलता है, वो क्या है? Output. This is nothing but output. Now we can see the some properties. The totally 4 to 5 properties are there in inverse trigonometric function. The first property means what? Sine of sine inverse x means what? Trigonometric of here t of t inverse of x का आंसर भी x से आएगा, t inverse of t of x का आंसर भी x से आएगा. But where the x belong, that's also important. When inverse is inside, then x belongs to the domain of inverse function, the domain of inverse function. And if you want the domain of normal function, that's also I will write sin x and cos x and tan x and cot x and secant x
and cosec x. We have to write the domains. The domains of sin x is real number and what about cosec x? Real number. Range तो आपको पता है क्या है range? -1 to 1, -1 to 1. And what about the tan x and cot x are same, but it is not defined at some point, some interval. What is that some interval? 2n plus 1 pi by 2. एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 जगह में एक क्या है tan x डिफाइंड नहीं है. आप ग्राफ देखेंगे आपको पता चलेगा. एंड cot x r माइनस एन फाइव जगह में डिफाइंड नहीं है बट इसका आर आर हो जाएगा. उधर देखो साइन इनवर्स x का क्या है, आप पीछे देखे देखो ये इधर आएगा ना सब. सो इसका तो यही आएगा r माइनस -1 to 1 r माइनस -1 to 1. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंटू -1 विथ क्लोज्ड 1 to infinity. सिर्फ -1 से 1 तक उसका वैल्यू नहीं आएगा, ये भी सेम. एंड सेक का डोमेन क्या है एंड कोसेक एक्स का डोमेन क्या है वो भी चाहिए ना. सो वेयर द सेक इज डिफाइंड, वेयर द कोसेक एक्स इज डिफाइंड, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इफ यू नो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स सो वंस यू विल गेट द ग्राफ. सो कोई इसका उल्टी टोपी बनाना पड़ेगा आपको ऐसा. सो दैट विल डिस्कस एवरीथिंग इन द ग्राफिकल मेथड क्लास साइन एक्स एंड कॉस एक्स. एंड इधर आप ये कोसेक एक्स का ग्राफ है, कोसेक एक्स का. कोसेक एक्स है ना ये 0 जगह में एंड ये वाला वैल्यू कौन सा पाई जगह में डिफाइन नहीं है. कौन सा? कोसेक एक्स. दैट्स इंपॉर्टेंट. सो r माइनस एन फाइव ये वैल्यू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वो जगह में क्या है फंक्शन डिफाइन नहीं है. तो आप ये वाला इधर लेना है, ये वाला इधर लेना है और रेस्ट्रिक्ट करना है. कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है तो ग्राफ पे देखना ही पड़ेगा. तो ग्राफ देके इधर आओ. क्लियर? सो वी हैव टू डिस्कस हियर दीज आर द डोमेन्स एंड रेंजेस and these are the properties, these are the domain. In this point only this will be available. means इसका आंसर क्या आएगा? x. इसका आंसर भी x, 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 x सबका x आएगा. इसका भी सेम, इसका भी x आएगा. x, 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 x. But the x belongs to what? X belongs to these value. Note it down. And this x belongs to x. Clear? So these are the important, the first property. And the second property is simple. आप रेसिप्रोकल पता है ना आपको, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं आप इसको. रेसिप्रोकल साइन x इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक x. फर्स्ट ईयर में है साइन x इक्वल टू 1 बाई कोसेक x एंड सेक x इज इक्वल टू 1 बाई कॉस x. tan x इक्वल टू 1 बाई कॉट x. उल्टा पलटा लिख सकते हैं ना. इधर भी सेम. साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या आएगा? साइन इनवर्स का वैल्यू, साइन इनवर्स का वैल्यू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई x आएगा. एंड कोसेक इनवर्स ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई x आएगा. एंड इसका क्या आएगा? इसका भी सेम है ना बाबा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई x. इसका क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 1 बाई x. इसका क्या आएगा? सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई x. इसका क्या आएगा? हाँ, cot inverse of 1 by x. You need to know the properties. These are the properties of the reciprocal. Second property. Third property है ना नेगेटिव. फंक्शन ऑफ नेगेटिव के लिए क्या कर सकते हैं आप, क्या लिखना पड़ेगा? इधर देखो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इट इज द ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, वो देखना पड़ेगा. सो इधर तो ऑड एक ही आएगा और इवन तो नहीं आएगा, वो पाई माइनस आएगा. साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस साइन इनवर्स एक्स. एंड व्हाट अबाउट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो छोड़ दो. tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? माइनस tan इनवर्स एक्स भी आएगा, पाई माइनस tan इनवर्स एक्स भी आएगा. एंड व्हाट अबाउट सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो सेक का कॉस आर सेम है ना. एंड कोसेक इनवर्स ऑफ क्या आएगा? साइन का डायरेक्ट आएगा, कोसेक इनवर्स एक्स. ये कॉट का क्या आएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. सेकेंड प्रायोरिटी इज डायरेक्टली माइनस कॉट इनवर्स एक्स. एंड सेक का कॉस का वो तो आएगा, क्या आएगा? सो 5 माइनस कॉस इनवर्स एक्स. एंड व्हाट अबाउट सेक इनवर्स एक्स, दैट इज आल्सो 5 माइनस cos inverse x. Clear? These are the given domains. Clear? So now we have to discuss about the points. What are the points are there? Tan inverse x, pi minus tan inverse x is there. Clear? So like that, these are the third properties and this is the third property. And next one, fourth property. Then here आपको उधर भी पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर? पाई बाय 2. पाई बाय 2, अरे बाबा इसका आंसर क्या आएगा?
1 आएगा। क्लियर। सो ऐसे ही हमारा इधर इनवर्स में आया तो क्या होगा, उधर वैल्यू आएगा, इधर एंगल आएगा, बस इधर क्या आएगा, इसका आंसर π/2, इसका आंसर क्या आएगा π/2, इसका आंसर भी π/2। दीज आर द कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या आएगा π/2। इधर कुछ भी नहीं, सेक को सेकेंड है ना, इसको आप को लिया तो क्या आ जाएगा को सेकेंड। दीज आर रिलेटेड। टैन को लिया तो को टेंजेंट, साइन को लिया तो को साइन, बिकॉज देयर साइन को आर मिलेगा तो π/2 आएगा। बस इतना ही करना है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खत्म हुआ अभी। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसके बाद में है हम देखेंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बिफोर टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल यू शुड बी नो द टेबल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? साइन थीटा का वैल्यू आना चाहिए ना आपको, 0 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यूज, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये पॉसिबल 180 डिग्री आल्सो फाइट करो। 90 डिग्री चाहिए बस। अभी इधर 0 को 0 बोलते, 30 को 5/6 बोलते, इसको 5/4, इसको 5/3, इसको 5/2, ये वाला पाई। क्लियर है। सो आगे चाहिए तो वो भी लिख दो। साइन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0, ये थीटा नहीं, साइन 0 क्या है आपको पता है 0। साइन 30 का क्या आएगा 1/2, साइन 45 का क्या आएगा 1/√2, साइन 60 क्या आएगा √3/2 एंड साइन 90 क्या आएगा 1। इफ यू डोंट नो हाउ टू रिमेंबर दिस then you have to follow this one. You have to take root of 4, root of 4, root of 4, root of 4 and root of 1 2 3 4 5. Clear? Just you need to take the values up to 4 है ना, 4 angles 1 2 3 4 5. So you have to substitute from 0 0 1 2 3 4. So इधर देखो 0/0, 0 by anything is 0, 1/4, 4 रूट क्या आ जाएगा रूट 4 का क्या आएगा 2 एंड इधर क्या आएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2√2। ये √3 बाय इसका आंसर 2, ये दोनों कैंसिल होएगा, आंसर 1 आएगा। यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस, यू विल गेट द फर्स्ट लाइन। आपको एक बार फर्स्ट लाइन का आंसर आया तो देयर इज नो नथिंग टू फाइंड अदर थिंग्स, बिकॉज cos थीटा का क्या हो जाएगा, इधर 90 से रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स बोले तो वापस ये वैल्यू इधर आएगा 1, ये वैल्यू इधर आएगा √3/2, ये वैल्यू तो इधर ही रहेगा, ये वैल्यू 1/2, वो वैल्यू इधर। क्लियर। एंड व्हाट अबाउट द tan थीटा, सेम है ना वो भी tan थीटा। सो tan थीटा का क्या हो जाएगा 0/1, आपको पता है ना tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा डिवाइडेड बाय cos theta. You have to remember all trigonometric formulas, then only you can solve the inverse trigonometry. Clear? Tan theta 0/1 किया तो 0, 1/2 √3/2, 2 2 cancel, 1/√3, 1/√2, 1/2 सेम है ना, कैंसल। सो √3/2, 2 2 कैंसल, √3, 1/0 इधर आया देखो मजाक, नॉट डिफाइंड। आप कॉट का लिया तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, आपको सेक का चाहिए तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड साइन थीटा को चाहिए तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, देन आपको सब 6 मिलेगा। You have to remember these values. Clear? So once you remember these values, then only you can solve this value. Clear? Now you have to use the property also, use the trigonometric values also. Both you have to solve here. So now solve this one. क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, इसका मीनिंग क्या है, ये साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 है ना, इसका आप कुछ ना कुछ y लिखो दो। सो ये साइन इनवर्स उधर गए तो और अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, actually the meaning of mathematics is applying sin on both sides. Sin of sin inverse of 1/√2 is equal to sin y. Sin of sin inverse of x, उधर प्रॉपर्टी था ना, क्या आएगा x, x का वैल्यू क्या है इधर 1/√2, साइन ऑफ साइन इनवर्स डब्बा, आंसर क्या आएगा डब्बा इज इक्वल टू साइन वाई। इन नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, हम ये साइन इनवर्स उधर भेज दो, क्या हो जाएगा साइन वाई, वापस वही आया ना, इसलिए हम ऐसा यूज करते हैं। साइन वाई इक्वल टू 1/√2 कब है वही आपका मिलना पड़ेगा। साइन ऑफ विच एंगल किया तो 1/√2 आता है, दैट इज द ओनली वैल्यू। इट मीन्स व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कब आएगा 5/4 में आएगा। बस इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली 5/4। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्लियर है। सो 5/4 डायरेक्टली लिखना है इसका आंसर। एट 5/4 साइन इनवर्स गेट्स द वैल्यू 1/√2। cot inverse of -1/√3, the first priority of cot inverse of -x का आंसर क्या आएगा
पाई माइनस कॉट इनवर्स x. क्लियर? नाउ यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस x. x का वैल्यू क्या है? 1/√3. सेम इधर भी क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1/√3. सो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3. तो अभी आप बोलो कॉट 1/√3 कब आएगा? कॉट 1/√3 कब आएगा? अब इधर देखो, tan 30 को 1/√3 आता है, तो कॉट 30 को क्या आ जाएगा? √3 आएगा. तो कॉट 60 ओनली गेट्स द 1/√3. ये रिमेंबर करना पड़ेगा. क्लियर? सो अभी इधर देखो, इसका वैल्यू कितना आएगा? 60. 60 बोले तो पाई/3. क्लियर? पाई माइनस पाई/3. 180 माइनस पाई/3. सो 3 पाई माइनस पाई होल डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा? 2 पाई/3. 16 × 2 कितना? 120 डिग्री इसका आंसर. अभी इधर देखो, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है. आपको पता है ना ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा. सो अभी डायरेक्टली आप लग सकते हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स, देन इट बिकम माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2. सो डायरेक्टली आपको पता है ना व्हाट इज द साइन इनवर्स ऑफ 1/2 वैल्यू? दैट विल बी द पाई/6 वैल्यू. क्लियर? सो दैट इज द सिंपलेस्ट. cos इनवर्स ऑफ √3/2 डायरेक्टली दिए, cos कब √3/2 होगा? सो व्हेन इट विल बी द पॉसिबल टू फाइंड द cos √3/2? दैट इज आपको पता है ना, cos 30 को क्या आएगा? √3/2. तो इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली 30. दैट इज 5/6. सिंपल प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट, cot इनवर्स ऑफ -1/√3. अगेन रिपीटेड क्वेश्चन. इधर थे ना, cot इनवर्स ऑफ -1/√3, cot इनवर्स ऑफ -1/2. ये तो सॉल्व हुआ. cos इनवर्स ऑफ -1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2. सो व्हेन इट इज द cos इनवर्स 1/2, दैट इज 60 डिग्री. 60 डिग्री को आया तो पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3. इजी है ना? इधर भी रिपीटेड क्वेश्चन. एंड tan इनवर्स ऑफ -1, आपको पता है ना tan इनवर्स ऑफ डायरेक्टली फॉर्मूला क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 1. सो पाई माइनस पाई/4. क्लियर? दिस विल बी द at 5/4 it will gives the value of tan inverse of -1. Clear? So I hope you are understanding this concept. And find the values of, ये वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा. उधर एक एक फाइंड किया, इधर एक एक फाइंड किए ना, इधर सब मिल के करना पड़ेगा एडिशन. tan इनवर्स ऑफ 1 क्या आएगा? पाई/4. cos इनवर्स ऑफ -1/2 को ऐसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, ऐसा लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा. ये क्या आएगा आंसर? माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2. अभी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 5/4 प्लस 5 एज इट इज माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2 कब आएगा? दैट इज नथिंग बट 5/3, 60 डिग्री. एंड साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कब आएगा? दैट इज 30 डिग्री. क्लियर? सो नाउ ये वैल्यू सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? और यू कैन टेक ऑल थ्रूआउट द एलसीएम. थ्रूआउट द एलसीएम क्या हो जाएगा? 6, 3, 4 का. और आप ऐसे ही सॉल्व करो, ये वाला पहला सॉल्व करो और बाद में वो सॉल्व करो. सो नेक्स्ट इट विल बी 5/4 प्लस ये वैल्यू 2 पाई/3 आएगा माइनस 5/6. ये 2 पाई/3 है ना, आप ऐसे सोचो, ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री. 120 डिग्री में 30 डिग्री निकाला तो क्या बचेगा? 90 डिग्री बचेगा. आप सॉल्व करके भी देखो ना, 6, 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6. और इधर ये वाला इसको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा? 4 माइनस 5. सो इधर कितना आएगा आपका आंसर? 3 पाई/6. 3 पाई/6 आएगा ना, 3 1 जा 3 2 जा, वही आएगा. 120 माइनस 30, 90. अभी इधर 45 एज वेल एज 90 क्या आएगा? 135 आएगा. वो 135 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, आ जाएगा. और आप एलसीएम 4 आएगा, पाई प्लस 2 पाई. इट इज नथिंग बट 3 पाई/4. इजी आंसर. क्लियर? इसका आंसर कितना आएगा? 3 पाई/4. इधर भी सेम है ना, ये आप कर सकते हैं. cos इनवर्स ऑफ 1/2 कब आएगा? पाई/3. ये कब आएगा? 2 पाई/6. 1 जा 3 जा, पाई/6, 5/3, 2 पाई/3. एक गोड़ा और एक गोड़ा, कितना गोड़ा? 2 गोड़ा. क्लियर? सो सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखना पड़ेगा. सो इधर भी tan इनवर्स ऑफ √3 कब आएगा? 60 डिग्री को आएगा. ये वैल्यू लिखना पड़ेगा, 5 माइनस sec इनवर्स ऑफ 2. देन इट इज नथिंग बट 5/3 माइनस 5 माइनस ये sec इनवर्स ऑफ 2 कब आएगा?
इट मीन्स कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कब आएगा, 60 को आएगा, ये भी 60 को आएगा, 5/3, 5 माइनस 5/3, 180 में 60 निकालो तो क्या बचेगा, 120 बचेगा, दैट इज नथिंग बट 2π/3, देन अगेन π/3 माइनस 2π/3 क्या हो जाएगा, -π/3, -60 आएगा इसका आंसर, क्लियर। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, साइन इनवर्स ऑफ sin 2π/3, सर आप ही बोले ना साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या भी हो डब्बा, इसका आंसर क्या आएगा, डब्बा, बट वो डब्बा बिलोंग्स टू किधर होना चाहिए, सिर्फ -π/2 से π/2 होना चाहिए, बट हमारा इधर आंसर किधर है, वो 2π/3 120 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है, तो वो डिफाइन नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू टेक द दैट इंटरवल, यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यू। कैसे रिड्यूस करते हैं आप इसको, साइन इनवर्स ऑफ साइन, वो 120 डिग्री है ना, 2π/3, 120 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, सो पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं आप। आपको अलाइड एंगल भी पता होना चाहिए, अलाइड एंगल क्या है इधर, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, these are what, and sin 90 plus theta, so 90 plus theta and sin 90 minus theta क्या आएगा, cos theta, because it is always a positive in first quadrant as well as second quadrant. 180 minus theta is nothing but second quadrant, 180 है तो no change, it becomes what, sin theta, so sin inverse of sin 180 minus theta क्या आएगा, sin theta, what is the theta value here, π/3, now sin inverse of sin theta क्या आएगा, थीटा ही आएगा। और सर मेरे को प्रॉपर्टी पता नहीं है, वैल्यूज पता है, तो करो ना, sin π/3, sin π/3 वैल्यू कितना, sin 60 वैल्यू कितना, √3/2, sin √3/2 कब आएगा, 60 आएगा, तो वापस आपका आंसर ये आएगा π/3, समझे ना। तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, देयर इज वेरी सिंपलेस्ट फॉर्मूला देयर इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यू हैव टू सॉल्व ओनली, you have to remember only the properties, you have to apply the properties, and you have to remember the formulas, and you have to remember the values of a trigonometric function, that's a very important in this section. And now ये तो सॉल्व हुआ, ये वाला देखो, ये भी सिंपल है, साइन गिवन क्या है, π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ये वैल्यू देखो क्या है, ये वैल्यू 5/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 is there, so you have to solve step by step. π/3 minus sin inverse of minus theta is nothing but minus sin inverse of theta, clear, and sin π/3 minus of plus sin inverse of 1/2 कब आएगा, sin 1/2 कब आएगा, that is only π/6, 60 plus 30 कितना हो जाएगा, 90, वो आप रिमेंबर करना पड़ेगा, π/2, ऐसे एलसीएम लेके कैंसिल करके मल्टीप्लिकेशन करके जरा टाइम, इधर देखो ना, 60 ये वाला 30, 60 प्लस 30 कितना, 90, साइन 90 कितना, 1, इसका आंसर कितना आएगा, 1, बस इसका आंसर हुआ। अभी इधर देखो ये भी सेम है, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -√3, tan इनवर्स ऑफ √3 कब आएगा, वो तो डायरेक्ट है π/3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -√3, ये कब आएगा, दिस इज नथिंग बट यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स ऑफ √3, नाउ 5/3 माइनस पाई कॉट इनवर्स ऑफ √3 कब आएगा, ये 60 है तो वो 30 हो जाएगा, बोले तो π/6, नेक्स्ट π/3 माइनस 6π माइनस पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, एंड नाउ π/3 ये वैल्यू क्या आएगा, π/6, π/6 मीन्स व्हाट, 150, ये π/3 मीन्स व्हाट, 60, 60 माइनस 150 किया तो क्या बचेगा, 60 माइनस 150, 60 माइनस 150, और 150 माइनस 60 करो, 90 बचेगा, ज्यादा वैल्यू किसका है, माइनस का, सो माइनस π/2, क्लियर, ये आपका सोल्यूशन, क्लियर। सो नाउ tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स cos ऑफ 2 टाइम्स sin इनवर्स ऑफ 1/2, क्वेश्चन दे के आपका चक्कर आएगा, ऐसा चक्कर आने के लिए जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए बस। अभी इधर देखो, हाँ, tan इनवर्स ऑफ, एक एक सॉल्व करो ना, एक एक स्टेप सॉल्व करो, आएगा 2 cos ऑफ, नेक्स्ट 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2, सो अभी ये ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, ये वाला कंप्लीट हुआ। अभी आप इधर देखो, मैं पहला ये वाला सॉल्व करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 times, what is the sin inverse of 1/2 value, that will be of 30 degree
that is 5/6. Now this 2 and this 2 get cancelled. 2 1s are 2 3s are 5/3 हुआ. So tan inverse of 2 cos of pi by 3. So what is the cos 60 value? That is nothing but 2 into 1 by 2. 2 2 cancel, tan inverse of 1. cos 60 वाले क्या हो जाएगा 1 by 2 और 2 2 कैंसिल, देन आंसर क्या आएगा 1. tan इनवर्स ऑफ 1 कब आएगा वो तो आपको पता है 5/4. तो इसका आंसर क्या आएगा 5/4. एंड व्हाट अबाउट दिस वन sin pi/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 by root pi. ये वाला आप करके दिखाओ. क्लियर? जस्ट यू नीड टू sin 90 प्लस थीटा. sin 90 प्लस थीटा क्या है फॉर्मूला वो आना पड़ेगा. 1 by root pi इज नथिंग बट as smallest value 2 पॉइंट. 1 by 2 पॉइंट आया तो 0 पॉइंट पे आएगा. -1 to 1 है ना. 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या आएगा cos थीटा. cos इनवर्स ऑफ 1 by root pi. You have to check this value is in between -1 to 1 or not. If it is in between -1 to 1 आपका क्या आएगा डब आएगा 1 by root pi. बस क्लियर. यही आपका सॉल्यूशन है, सोचना मत. क्लियर? So I hope you are understood all the things in this class. Thank you.